Hello, very good afternoon to all of you. Hello, am I audible to all of you? Hello, Yes, sir. okay. So today we will going to perform our next electrical machine to lab, and that is the determine the direct axis reactance and quadrature axis reactance of a synchronous machine. Okay. So XD and XQ test is the today's experiment. First, we will going to discuss about the theory of this particular experiment, and after the discussing the theory of this experiment, we are going to perform the lab. Okay. Okay. So first, I turn on my mobile camera. Is my mobile camera visible to all of you? Hello. Is my mobile camera No, visible? sir. Okay, I am No, adjusting. sir. No, sir. I'm adjusting. Okay. Wait. Now, please see carefully. Is my mobile camera is visible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. So today we are going to perform our experiment is this. Okay. First, we have to discuss the theory portion. Then we are going to perform this lab. Okay. So the name of this particular lab is to determine the direct axis and quadrature axis reactance of synchronous machine. Okay. So first go to the circuit diagram. Okay. So that is the basic circuit diagram of this particular experiment. Okay. And also this is the circuit diagram here. Okay. I think it is visible to all of you. So in the circuit, no, first I have to discuss the theory portion. After that, I will discuss that circuit, and then we are going to perform the lab. Okay. Okay. So listen to me very carefully. Okay. Listen to me very carefully. So today's experiment is XD and XQ of synchronous machine, right? So why sleep test? Why we are first question arise that why we are using this test? Okay, why sleep test? This experiment we also call this experiment that is sleep test. XD and XQ of the synchronous machine. This experiment we called the sleep test. So why we are using this name? Because to find out the XD and XQ in the salient pole synchronous machine. Okay, salient pole matlab this. This is the salient pole. I think you also know that this is the salient pole of synchronous machine. This type of pointing rotor we are called this type of rotor that salient pole. So why sleep test? To find out the XDXQ salient pole synchronous machine. Okay. So salient pole. What is the salient pole? Salient pole is the nothing but a poles will be projected. Poles will be projected. That means this. This is the. In this picture, you can see that this pole is projected. Inside and outside, the pole is projected. So that's why we have called this is the salient pole. Okay. So first we have to give three-phase supply. Okay.
why we are giving three phase supply via auto transformer? क्योंकि ये synchronous machine है, okay? And we all know that in the synchronous machine, स्टेटर में हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं? प्लीज टेल मी, सिंक्रोनस मशीन का स्टेटर में हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं? प्लीज टेल मी एनीवन, व्हाट सप्लाई वी आर गिविंग इन द थ्री फेज सिंक्रोनस मशीन स्टेटर? थ्री फेज सप्लाई, ओके? तो स्टेटर इन द स्टेटर वी आर गिविंग थ्री फेज सप्लाई वाया ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर का काम क्या है? थ्री फेज सप्लाई मतलब 420 वोल्ट, राइट? और ऑटो ट्रांसफार्मर का काम क्या है? ऑटो ट्रांसफार्मर उस वोल्टेज को, हम लोग जो फिक्स वोल्टेज है 420 वोल्ट, 430 वोल्ट, उसको हम लोग वेरी कर सकते हैं। 0 to 430 उसको वेरी कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे? हम लोग स्टेटर को हम लोग वी आर गिविंग द स्टेटर थ्री फेज सप्लाई वाया ऑटो ट्रांसफार्मर, ओके? एंड बट इस टेस्ट को करने के लिए वी आर जस्ट गिविंग द 20% ऑफ द रेटेड वोल्टेज। 20% ऑफ द रेटेड वोल्टेज मतलब 415 अगर रेटेड वोल्टेज होगा, थ्री फेज का रेटेड वोल्टेज 415 होगा, तो 20% मतलब होता है 83 और 84। तो 20% रेटेड वोल्टेज को हम लोग को अप्लाई करना है, हम लोग फुल वोल्टेज नहीं दे सकते। ये जो 20% रेटेड वोल्टेज हम लोग 83 वोल्टेज चाहिए और 84 और नियर अबाउट 85 वोल्टेज चाहिए, हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। ये अगर विदाउट ऑटो ट्रांसफार्मर होता तो ये पॉसिबल नहीं था, because we are using auto transformer because we can vary the fixed voltage, that is 420 volt 420 volt to 83 volt. Our desirable voltage, if we are need a fixed voltage to our desirable voltage in that particular voltage, then we are using auto transformer, okay? So हम लोग को सप्लाई दे दिया सिंक्रोनस मशीन का स्टेटर में, कितना सप्लाई दे दिया? 20% ऑफ द रेटेड वोल्टेज। रेटेड वोल्टेज अगर 420 हुआ तो उसका 85 होगा, ओके? सो आफ्टर दैट पॉइंट नंबर 5 इज आरएमएफ, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। सो हम लोग ये जानते हैं कि कोई भी मशीन का हम लोग अगर सीधे सप्लाई देते हैं स्टेटर में, तो क्या होता है? एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, राइट? आरएमएफ, इसको हम लोग आरएमएफ बोलते हैं। और आरएमएफ का स्पीड क्या होता है? Please tell me what is the speed of the rotating magnetic field, which is produced in the after giving the three phase supply in the stator? What is the speed of the rotating magnetic field? RMS. अगर मेरा क्वेश्चन है, अगर कोई जैसे सिंक्रोनस मशीन हम लोग थ्री फेज सप्लाई दे दिया स्टेटर में, तो उसके लिए एक आरएमएफ जनरेट होगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा जिसका नेचर होगा रोटेटिंग। तो उसके लिए हम लोग उसका स्पीड कितना होगा? स्पीड को हम लोग क्या बोलेंगे? हेलो एनीवन? सौरभ? सिंक्रोनस स्पीड। यस राइट, सिंक्रोनस स्पीड। सो आरएमएफ will produce in the rotor, rotating magnetic field is produced after giving the three phase supply. Very good. एक चीज इधर पर मैं बोलना चाहता हूँ कि हम लोग जो इस एक्सपेरिमेंट में 20% वोल्टेज हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब जो रेटेड वोल्टेज है 420 या 450, उसका 20% वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं 83 और 85, देन द फ्लक्स मैग्नीट्यूड इज वेरी लो, लेस, ओके? इसीलिए फ्लक्स मैग्नीट्यूड वेरी लो होगा, ओके? सो इन जनरल वी गिविंग डीसी सप्लाई टू द रोटर ऑफ द फॉर इन द सिंक्रोनस मशीन का हम लोग जो रोटर होता है उसमें हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं? कौन सा करंट उसको हम लोग फिट करते हैं? सिंक्रोनस मशीन का रोटर में हम लोग कौन सा सप्लाई देते हैं, एसी या डीसी? प्लीज एनीवन? डीसी सर। जी सर। डीसी, ओके? डीसी। ओके। सो इन जनरल वी आर गिविंग डीसी सप्लाई टू द रोटर फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्योंकि अगर डीसी सप्लाई देते हैं तो क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, प्रोड्यूस होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या काम करता है? रोटर का इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या काम करता है? स्टेटर में तो आरएमएफ जनरेट हो गया और सिंक्रोनस स्पीड में घूम रहा है, मगर रोटर में हम लोग जो सप्लाई देते हैं, इन जनरल का बात बोल रहा हूँ, इस एक्सपेरिमेंट का बात नहीं बोल रहा हूँ। इन जनरल हम लोग सिंक्रोनस मशीन का रोटर में डीसी सप्लाई देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा,
इलेक्ट्रोमैग्नेट अगर बन जाएगा तो क्या होगा, वो क्या करेगा, वो जो आरएमएस है, सिंक्रोनस स्पीड है, उसके साथ इंटरलॉक हो जाएगा। इसीलिए हम लोग सिंक्रोनस मशीन बोलते हैं उसको। वी ऑल नो दैट, बट इन हियर द सिनेरियो इज सम डिफरेंट। In here, listen to me very carefully. In here, controlling the prime mover, we rotate the rotor and slightly less than the synchronous speed. तो पर्टिकुलर इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग जो रोटर है उसको एक प्राइम मूवर से हम लोग घुमाएंगे, ओके, जैसे सिंक्रोनाइजेशन में करते हैं हम लोग, और उसका स्पीड क्या क्या रखेंगे, स्लाइटली लेस देन द सिंक्रोनस, स्लाइटली लेस देन द सिंक्रोनस स्पीड। क्यों रखेंगे, इंटरलॉक ना हो पाए, okay, so that we, here our concept is we must here our concern is we must, in general क्या होता है, in general मैंने क्या बोला था, रोटर में हम लोग बिजली सप्लाई देते हैं, रोटर में इनर पोल बन जाता है, वो क्या करता है, सिंक्रोनस मशीन का जो स्टेटर का जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है, राइट, स्टेटर का जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक जो फील्ड होता है, ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है आरएमएस पे घूम रहा है, तो इसमें अगर हम बिजली सप्लाई दे दिए तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। ये क्या करेगा, इसका जो स्पीड है, इसका स्पीड क्या होगा, ये दोनों का स्पीड इंटरलॉक हो जाएगा, सिंक्रोनस स्पीड में घूमेगा। मगर हियर द केस इज समथिंग डिफरेंट। we move the prime mover of the DC machine, okay, rotor separately, and we are rotate the rotor of the synchronous machine slightly less than the synchronous। हम लोग सिंक्रोनस मशीन का जो रोटर है इसको हम लोग प्राइम मूवर से घुमा रहे हैं, इस मशीन में सिंक्रोनस मशीन का जो रोटर है इसको हम लोग एक प्राइम मूवर से घुमा रहे हैं, ठीक है, रोटेट कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग के हाथ में है, हम लोग सिंक्रोनस मशीन का जो रोटर है उसको सिंक्रोनस स्पीड से कम स्पीड से घुमाएंगे। मतलब मान लो सिंक्रोनस स्पीड है 1500 आरपीएम, तो हम लोग क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर, प्राइम मूवर मतलब एक डीसी मशीन से सिंक्रोनस मशीन का रोटर को कपलिंग कर दिए। बात को अच्छी तरह से समझो, एक प्राइम मूवर मतलब हम लोग सिंक्रोनस मशीन का रोटर को डायरेक्ट सीधी सप्लाई नहीं दिए, हम लोग उसको एक विद द हेल्प ऑफ डीसी मोटर हम लोग उसको रोटेट कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो हम लोग के हाथ में है, अगर हम डीसी मोटर को सप्लाई को थोड़ा कम कर दिए, मतलब सिंक्रोनस स्पीड 1500 आरपीएम है, सिंक्रोनस मशीन का स्टेटर में 3 फेज सप्लाई दे दिए, और हम लोग क्या करेंगे, जो प्राइम मूवर का एनर्जी रोटेट कहां से हो रहा है, डीसी मोटर से, तो उसको कंट्रोल करके हम लोग स्पीड को 1500 आरपीएम से थोड़ा सा कम रखेंगे, मतलब 1470 आरपीएम। ओके, till now I think all thing is clear. Okay, so listen to me carefully. उसके बाद क्या होगा, हम लोग रोटर को स्लाइटली लेस देन सिंक्रोनस स्पीड से हम लोग रोटेट करवा रहे हैं। इतना तो क्लियर हो गया हमें। तो आरएमएस स्पीड, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड क्या है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड क्या है, एनएस। एनएस मतलब एनएस इज द सिंक्रोनस स्पीड एंड द सैलिएंट पोल रोटर, सैलिएंट पोल मतलब दिस इज द सैलिएंट पोल रोटर, इसका रोटर को हम लोग, मैंने क्या बोला था, स्लाइटली लेस देन द सिंक्रोनस स्पीड पे घुमा रहा है, तो इसका मान लो एन है। तो अकॉर्डिंग टू व्हाट आई हैव सेड ऑलरेडी, we can set ns greater than n, मतलब ns ज्यादा होगा n से, क्योंकि ये तो सिंक्रोनस स्पीड से घूम रहा है, ये तो 1500 आरपीएम से घूम रहा है, 1500, और इसको हम लोग 1470 में, इसको हम लोग 1470 में रोटेट करेंगे, इसको हम लोग 1470 में रोटेट करेंगे। तो स्लिप होगा, तो स्लिप का डिफरेंस क्या होगा, स्लिप ns माइनस n, मतलब सिंक्रोनस ns माइनस n मतलब, प्लीज टेल मी, स्लिप क्या होगा, स्लिप मतलब द डिफरेंस बिटवीन द टू स्पीड, ns टू स्पीड ऑफ द, ठीक है, ns माइनस n सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड,
so change in speed change आएगा speed में. So then after that due to the speed difference EMF induced. अगर speed difference होगा in a synchronous speed और जो रोटर का स्पीड है इसमें अगर स्पीड डिफरेंस होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, राइट? दैट इज ऑलरेडी वी हैव नो. ओके, अभी क्वेश्चन एक अराइज होना चाहिए कि सर ईएमएफ क्यों इंड्यूस हो रहा है, सर ईएमएफ क्यों इंड्यूस हो रहा है, ये तो क्वेश्चन होना चाहिए, ईएमएफ क्यों इंड्यूस हो रहा है. सो पहले तुम एक चीज मुझे बताओ, सिंक्रोनस मशीन का रोटो स्टेटर में हम लोग 3 फेज सप्लाई दे रहे हैं, 3 फेज सप्लाई दे रहे हैं आर वाई बी, तो एक आरएमएफ इंड्यूस हुआ रोटरी मैग्नेटिक फील्ड जो एन स्पीड पे घूम रहा है. तो सेम चीज तो 3 फेज इंडक्शन मोटर में भी होता है, ये सुन लो, सेम चीज इंडक्शन मोटर में भी होता है. मगर इंडक्शन मोटर में मान लो एक स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है तो उसके बीच में रोटर रहता है, ऐसा टाइप का रोटर है, ऐसा टाइप का रोटर, तो शॉर्ट सर्किट किया रहता है, शॉर्ट सर्किट किया रहता है. यस यस ये सुन लो, ये शॉर्ट रहता है, ये है इंडक्शन मोटर रोटर. ओके, 12 केज, ये तो शॉर्ट किया हुआ है, मगर इधर पर शॉर्ट किया हुआ नहीं है. ये देखो फील्ड का 2 टर्मिनल है, ये ओपन सर्किट. सो इन इंडक्शन मोटर्स सर्किट इज शॉर्ट circuit, but in the here it is open circuit. That's why the EMF is induced. Okay, so in the here you can see 3 phases are there in the induction machine stator, R and R. Okay, R and R dash, Y and Y dash, and B and B dash. ठीक है, इसमें हम लोग 3 फेज सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं, तो 3 phases are there. So when we here in the here look at very carefully, in here when R dash, R and R dash जो फेज है स्टेटर का क्रॉसेस द रोटर, ये फेज आर में है तो रोटर को क्रॉस कर रहा है, ठीक है, विदाउट द एयर गैप डायरेक्टली, देन वोल्टेज विल बी मैक्सिमम होगा एंड द करंट विल बी मिनिमम. ओके, सो क्यों होगा ये चीज इधर पर देखो, अगर क्वाड्रेचर एक्सिस, ये जो एक्सिस है, ये जो वर्टिकल एक्सिस है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये जो वर्टिकल एक्सिस इसको बोलते हैं डी एक्सिस. ओके, ये इसको हम लोग डी एक्सिस बोलते हैं, एंड डी एक्सिस, एंड जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम लोग पी एक्सिस बोलते हैं. लिसन टू मी वेरी केयरफुली, दिस एक्सिस इज we called this axis, this horizontal, this vertical axis we are called d axis, and this horizontal axis we are called q axis. Okay, but when R and R dash crosses the rotor, the R and R dash when it crosses the rotor without the air gap directly, then the voltage will be maximum and the current will be minimum. क्यों ऐसा होगा, क्योंकि इधर पर QD मतलब क्वाड्रेचर एक्सिस. ओके, क्वाड्रेचर एक्सिस, इसको ऊपर जब ये क्रॉस करेगा, ठीक है, तब क्या होगा, हम लोग उसको डायरेक्ट एक्सिस रिएक्टेंस बोलेंगे. ये आर एंड आर डैश, सिर्फ एक फेज को देखो पहले, इसके साथ जब ये क्रॉस करेगा तब हम लोग क्या बोलेंगे, व्हेन आर एंड आर डैश क्रॉस द रोटर. ये जब ये तो रोटेटिंग है, मान लो ये रोटेटिंग है, आरएमएफ है, ये जब ये रोटर को क्रॉस करेगा, आपको समझ अच्छी से, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं, सॉरी ये जो वर्टिकल लाइन है देखो नीचे लिखा है डी, इज डी इज नोटेड, एंड ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है दिस इज द क्यू. ओके, सो डायरेक्ट एक्सिस, डी फॉर डायरेक्ट एक्सिस एंड क्यू फॉर क्वाड्रेचर एक्सिस. तो जो आरएमएफ है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, इट इज रोटेटिंग. सो इफ इट इज रोटेटिंग and if we look at the R and R phase, then what happens when R and R phase crosses the rotor, R and R phase crosses the rotor को जब क्रॉस करेगा तब क्या होगा, एक EMF इंड्यूस होगा, राइट? और यस और नो, EMF इंड्यूस होगा रोटर विदाउट द एयर गैप, देन द वोल्टेज विल बी मैक्सिमम. EMF इंड्यूस होगा तो वोल्टेज भी, EMF मतलब एक वोल्टेज इंड्यूस, वोल्टेज होगा उधर पर.
तो इधर पर देखो वही बोला गया है क्वाड्रेचर एक्सिस पे एचवी जब डायरेक्ट एक्सिस में डी एक्सिस में क्रॉस करेगा तो क्या होगा वोल्टेज इधर पर केयरफुली देखो तो वोल्टेज विल बी मैक्सिमम एंड करंट विल बी मिनिमम एंड जब क्यू एक्सिस में जब क्यू एक्सिस को क्रॉस करेगा जब मान लो ये जो क्यू एक्सिस है इसको क्रॉस करेगा तो क्या होगा जब क्यू एक्सिस को क्रॉस करेगा someone mic is on please turn off the mic तो जब क्यू एक्सिस को क्रॉस करेगा तो क्या होगा जब क्यू एक्सिस को क्रॉस करेगा तो क्या होगा इधर पर ऑपोजिट 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 इंसिडेंट होगा तब करंट विल बी मैक्सिमम वोल्टेज विल बी मिनिमम जब वोल्टेज इंड्यूस्ड मिनिमम होगा ओके अगर ऐसा 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 चीज होगा तब क्या होगा व्हाट विल हैपन तब क्या होगा तब हम लोग देखेंगे ये जो सर्किट डायग्राम है ये जो सर्किट डायग्राम है इसका तो ये जो एमीटर और वोल्टमीटर लगाया गया है एक फेज के सीरीज में और दो फेज के पैरेलल में वोल्टमीटर लगाया गया है तो हम लोग देखेंगे कि एमीटर और वोल्टमीटर के बीच में एक मूवमेंट हो रहा है मतलब एक करंट और वोल्टेज को क्या हो रहा है एक मूव कर रहा है मतलब ये डिटोरिएट कर रहा है मूव कर रहा है और एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पे मूव कर रहा है ये पर्टिकुलर एक जगह में स्टेबल नहीं हो पा रहा है ये अनस्टेबल कंडीशन में द पॉइंटर ऑफ द एमीटर एंड वोल्टमीटर आर मूविंग और इसका फॉर्मूला क्या हम लोग कैसे निकालेंगे सो डायरेक्ट एक्सिस क्वाड्रेचर एक्सिस रिएक्टेंस तो क्वाड्रेचर एक्सिस का रिएक्टेंस इधर पर देखो ठीक है तो क्वाड्रेचर एक्सिस रिएक्टेंस हम लोग फॉर्मूला मैक्सिमम वोल्टेज पर फेज बाय मिनिमम करंट पर फेज एंड मैक्सिमम वोल्टेज मैंने क्या बोला था डायरेक्ट जब एक्सी को डी को क्रॉस करेगा मैक्सिमम वोल्टेज होगा यस और नो आई थिंक इज माय कॉपी इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू जब डी एक्सिस को क्रॉस करेगा तो वोल्टेज क्या होगा मैक्सिमम होगा सो मैक्सिमम वोल्टेज पर फेज बाय मिनिमम करंट पर फेज एंड जब डी क्यू एक्सिस को क्रॉस करेगा तब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे मिनिमम करंट पर फेज बाय मैक्सिमम वोल्टेज पर okay and we are giving RYB you can clearly see here this is the supply voltage R Y and B we are giving this supply to the auto transformer and via the auto transformer we are giving the supply to the our synchronous machine or the experimental experiment okay so that is the theory portion now we are just go through the manual we have just go through the manual so that is the theory portion what I have already discussed okay there you can clearly see that in here also you can clearly see the manual theory portion of the manual d axis is there and q axis is there okay so after that that is the circuit now we are design this circuit diagram in our experimental panel okay so look at the circuit diagram very carefully I am discussing the circuit diagram here okay circuit diagram for the panel okay so मैंने क्या बोला था पहले हम लोग इस सर्किट डायग्राम को बहुत अच्छी तरह से देखो तो सिंक्रोनस मशीन है ये देखो सिंक्रोनस मशीन दैट इज द सिंक्रोनस मशीन So look at the circuit. Okay. So here three-phase synchronous machine is there. You can clearly see. So three-phase synchronous machine का हम लोग क्या बोले थे? स्टेटर में हम लोग three-phase power supply देंगे. So we are giving the three-phase power supply. You can clearly see here. We are giving the three-phase power supply to the three-phase synchronous machine via three-phase barrier. Why via three-phase barrier? Because we are varying this voltage is fixed. 415 volt. We cannot vary this voltage without the auto transformer. So we are using the auto transformer because we can vary the voltage from 0 to 415 volt. And the output of the auto transformer, that is the output terminal of the auto transformer, this is the output terminal of the auto transformer. If the meter is off automatically, then it will join again. Okay. So this is the output of the auto transformer. Output of the auto transformer is connecting to the going to the three-phase synchronous machine. In between one phase, we are adding a ammeter
In between the two phase, we are adding the voltmeter for measuring the voltage and ammeter for current. Okay. And now I have already said, please remember that we are moving. Listen to me very carefully. We are moving the rotor of the three-phase synchronous machine. We are moving the rotor of the three-phase synchronous machine by using the prime mover. Means one DC motor is there. With the help of DC motor, we can rotate the rotor of the three-phase synchronous machine. तो ये जो डीसी मशीन लगा है, इसके थ्रू हम लोग सिंक्रोनस मशीन का रोटर को मोटिवेट कर रहे हैं। इसके लिए तो पावर सप्लाई चाहिए, तो सिंक्रोनस मशीन को नहीं चाहिए, तो डीसी मोटर का क्या पावर सप्लाई चाहिए? ऑब्वियसली डीसी। So here you are using, what 220 volt DC supply. You can clearly see. जो कहाँ पर जा रहा है? डीसी मोटर में जा रहा है. This is the shunt motor. You can clearly see the armature and the field are connected in the parallel. So this is the DC shunt motor. Also here it is mentioned. Okay. Okay. And synchronous machine field is there. Synchronous machine field is there. So that is nothing but a circuit diagram of the particular experiment. Okay. Now I am going to the experimental field. Go to the front of the experiment. Okay. Now adjust the camera. If the meeting is off automatically, am I audible to all of you? Hello. Yes, sir. Yes, sir. If the meeting is off automatically, then join again immediately. Okay. Now I go to the experimental panel. Okay. This is the circuit diagram. We have to design this circuit. Okay. Please wait for 2 minutes. Am I audible to all of you? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. If meeting is off automatically, then join again. Okay. 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 Can you see the experimental
experimental experiment. Hello, can you see it? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So if the meeting is off, then please join again. Okay. So now our main priority is to design this circuit. Okay. So already we are connecting this circuit. First we have to understand the whole thing. First we have to understand the whole thing and complete the experiment. After that we can, if we can, then if you want, then I can design the whole circuit again. Okay, no doubt. So in the experimental panel, you can clearly see that is the name of the experiment is the determination of synchronous machine. I think all of you. So the hello, am I audible to? Hello. Yes, sir. Hello. Okay. Please join again. I am disconnecting the meeting. Some network issue is there. Please join again. I am disconnecting the meeting here. Please join again using the same link. Now,